Hello dear students, I am going to introduce you past continuous tense and some prepositional words. Previously, I have taught to you past indefinite tense. Now I am going to start past continuous tense. First of all, there is formula. First of all, we will have to take subject plus was और bar. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए was और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी इन द सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज का प्रयोग किया बिकॉज ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट. एंड उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing का प्रयोग एंड टू स्कूल. ही वाज गोइंग to school. They were going to the market. दे के बाद वर्ब क्यों आया? बिकॉज इट इज ए प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ बाद आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाद का प्रयोग होता है. दे वर गोइंग टू द मार्केट. ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग. सिंग ए सॉन्ग आता है. और I was sitting in my room. I के साथ was, you के साथ वर, they के साथ वर, I के साथ was का प्रयोग. I was sitting in my room. We were learning our lessons. We can also make another sentence also on this basis. They were learning their lesson. We were learning our lesson. Girls were learning their lesson. Boys were learning their lesson, etc. The child was weeping. The child was weeping. यदि children ज़्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है. The children were weeping. Was the child weeping? It is interrogative form. Was the child weeping? Was he not writing in the notebook? It is in the interrogative form. Was it not raining? क्या वर्षा नहीं हो रही थी? Was it not raining? Was he not laughing? क्या वह नहीं हंस रहा था? On this style we can also make another sentences. Were they not laughing? Were the girls not laughing? Were the boys not laughing? Was the teacher not teaching to us? The teacher was teaching to us. The teacher was not teaching to us. अब interrogative form में was the teacher not teaching to us? So I have told you in all this form, affirmative, negative and interrogative form में ये मैंने आपको फॉर्मूला करके बता दिए. Now I am going to introduce you use of prepositional word. For example, beside और besides में अंतर. Beside meant for pass, नज़दीक. जैसे he was sitting beside his mother. वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ था. The girl was sitting beside her mother. A child was sitting beside his mother. और besides का मतलब होता है except. Beside का मतलब pass, near और beside का मतलब except. Besides Ram, all were present in the class. मोहन को छोड़कर except मोहन सभी क्लास के लड़के हाजिर थे. Besides Ram, all were present in the class. Again, our new word with each other दो के लिए आता है और with one another more than two के लिए आता है. With one another में with each other both the brothers love each other. दोनों भाई आपस में प्यार से रहते हैं. With each other का प्रयोग. This is prepositional word. This is called the prepositional word. Now I am going to further with one another, दो से अधिक के लिए. Boys quarreled with one another in the class. लड़के कक्षा में आपस में झगड़ पड़े. The boys quarreled
with one another in the class। और मैं और बताने जा रहा हूँ डेयर। डेयर वर्ड ऐसा है, डेयर के बाद आमतौर पर जनरली भी इसके बाद डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ सेंसेस में करते हैं। मैं दोनों ही बतलाऊँगा। डेयर, हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, आप कैसे हिम्मत फिर मुझे गाली गलौज करने का। अब्यूज़ मैंने गाली देना। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, डेयर के बाद टू नहीं आया क्योंकि बर्फ से पहले टू आता है। मैंने आपको बताना चाहूँगा, मेन एक सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब के बाद जब नेक्स्ट दूसरा वर्ब आता है उससे पहले या तो टू लगता है या उस वर्ब सेकंड वर्ब के बाद में आईएनजी लगती है, जिसको फिनिट नॉट इंडेफिनिट सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डेयर जहाँ नहीं आता वो सेंटेंस बनाए हैं जहाँ डेयर का और टू का प्रयोग नहीं होता। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी, आप कैसे आपने साहस किया मुझे गाली गलौज करने का। यू कैन नॉट डेयर फाइट विद मी, यह रहेगा फाइट विद मी, तुम्हारा मुझसे साथ। यू कैन नॉट डेयर फाइट विद मी, तुम मेरे साथ लड़ने का साहस नहीं कर सकते हो। डेयर के बाद इन सेंटेंसेस में टू नहीं आया। जनरली सेंटेंसेस में जनरल तौर पर डेयर के बाद टू नहीं आता। लेकिन बट इफ देयर इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंटेंस, इफ देयर इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ इन द सेंटेंस, इन दैट केस टू कम्स आफ्टर डेयर। उस हालत में तो डेयर के बाद टू का प्रयोग हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल ईजी, एज फॉर एग्जाम्पल डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलने का साहस होना चाहिए। सभी सच बोलो, झूठ मत बोलो, सबका भला करो, गरीबों को ना सहो। दीज आर का यूनिवर्सल ट्रूथ है। माता पिता की सेवा करो, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स। दीज सेंटेंसेस आर यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कोई झुटला नहीं सकता। डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, डेयर टू सर्व योर लैंड, कोई गलती नहीं कर सकता। अपने देश की सेवा करने का साहस होना चाहिए। ऐसी हालत में डेयर के बाद टू आ जाता है। डेयर टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, अपने देश के लिए हमें अपने बलिदान हो जाने का साहस होना चाहिए। डेयर टू स्टैंड बाई योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें अपने माता पिता और अपने बड़ों की अध्यापकों का साथ देने का साहस होना चाहिए। स्टैंड बाई, डेयर टू स्टैंड बाई your parents and teacher, these all these sentences depend upon the universal truth, जिसको हम कभी झुटला नहीं सकते हैं। इस जनरल केस में टू नहीं आता, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ डेयर के बाद टू आ जाता है। यू शुड कीप इन माइंड दिस वर्ड। और नाउ इफ देयर इज एनी डाउट आई विल रिपीट यू अगेन, बट इफ देयर इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस सेंटेंस, टू comes after dare. Dare to speak the truth, dare to serve your land, dare to sacrifice your life for the sake of the country, dare to stand by, साथ देना, dare to stand by your parents and teachers and elders. We must have we must dare to serve our elders, to obey our parents, to obey our teachers. These are the things which are called universal truth. Today I have taught you for past continuous tense and some prepositional words. If you liked it, please contribute कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। That's all. Okay.